Hello guys, welcome to my channel एजुकेशनल प्लाजा। मेरे चैनल एजुकेशनल प्लाजा में आप सभी का शानदार स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस civics chapter 7 outcomes of democracy. You know, it is very important chapter. Two videos I have already uploaded from this chapter on two topics. One, how is democracy better than any other form of government? And second, how is democratic government an accountable, responsive and legitimate government? Today I am going to discuss with you about different ways to evaluate the outcomes of democracy. Outcomes, that is the result of democracy. डेमोक्रेसी के सफलता और असफलता को हम कैसे जज कर सकते हैं? तो देयर आर different parameters. Of course, the result of democracy is positive. Sometimes we blame it, we are not satisfied, but by heart we all want democracy. कभी कभी हम डेमोक्रेसी के प्रति गुस्सा जाहिर करते हैं, तकलीफ होता है अगर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, और पता नहीं हम क्या क्या कह बैठते हैं लोकतंत्र को। परंतु मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दिल से हम सभी क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी ही चाहते हैं, लोकतंत्र ही चाहते हैं, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आवर ओन गवर्नमेंट। तो आइए पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पे बात करें। पीपुल बिलीव इन डेमोक्रेसी but also shows dissatisfaction with the democracy in practice. People believe in democracy. लोग डेमोक्रेसी में विश्वास तो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के प्रति असंतोष भी जाहिर करते हैं। दे एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन when their expectations, when their goals are not achieved. In other words, we can say that democracy is good in words but not in its practice. डेमोक्रेसी वर्ड्स में, पढ़ने में, शब्दों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो उतना इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है ऐसा आपको महसूस होता हो, ऐसा हम सबको कभी न कभी महसूस होता है। इसी का नाम डेमोक्रेसी है, तो फिर हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। कभी कभी तो कुछ लोग इस हद तक कह देते हैं कि अरे इस डेमोक्रेसी से तो अच्छा था महाराजा का शासन, अंग्रेजों का शासन। यस, आई एक्सेप्ट, समटाइम इट हैपेंस। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट इन डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी में कल्पना नहीं करते, एंड वी यूज टू से about that. Democracies in different countries. Democracy in different countries did not bring similar achievements. Dear students, if there are many countries which are democratic, will be same result, similar achievement in all the nations? Of course no.
लेट अस फर्स्ट थिंक व्हाट इज कॉमन इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं. वेयर एवर देयर इज डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन. वहां संविधान होता है, जनता के द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है. दे हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, may have some two party system, some have multi party system, as in our country is multi party system. In mostly democracies there is multi party system. They hold elections. Almost in all the democratic countries election is held. They also guarantee the rights of citizen in common. In democratic system citizens are given some essential rights to enjoy their life, to fulfill their needs. ये तो हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं. जब ये सारे चीज हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन और जनता को राइट्स मिलते हैं, तो क्या सभी देश में, सभी राष्ट्रों में, इन ऑल द नेशंस, रिजल्ट विल बी सेम? नो. Because these countries differs in social situation. In all the countries, same type of similar social situation does not exist. So these countries differs in social situations, economic strength and culture. It means the result of democracy depend on ethnic composition, social composition of the country. What is economic condition of the country and what is culture there. Suppose if there is all maximum 95% or mostly people Christians, it means government has not to think about religious issues. They can take freely decision. If there is only one language in a whole nation, government will be tension free. But think about India, where thousands of languages, different castes, different religions, different ethnic groups, lifestyle, clothing style, food style, these all things are different in our countries. How this effect will be same? That's why we find different effect in different countries of democracy. डेमोक्रेसी का हर देश में अलग अलग प्रभाव दिखता है. टेक एग्जाम्पल, सपोज इंडिया. अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा, क्यों नहीं हमारे देश में हर गांव में, हर गली में जितने भी स्कूल हैं उसके स्कूल के बिल्डिंग 2 स्टोरी 3 स्टोरी बना दिए जाते हैं, अच्छा मॉडल स्कूल बना दिया जाए. डियर स्टूडेंट्स, आपका सोचना बिल्कुल सही है. यू आर राइट. वी ऑल्सो वांट, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट, लेकिन हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमारी इनकम अभी उतनी नहीं है. We have vast population. Every day one Australia is created in our country. तो पहले हमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है, उनके खाने की व्यवस्था करनी होती है. अगर हम सारे पैसे स्कूल बिल्डिंग बनाने में लगा देंगे, फिर उनके लिए हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा, सड़कें नहीं बन पाएगी और दूसरी सुविधाएं नहीं दी जा सकेगी. सो अगर हमें डेमोक्रेटिक का इफेक्ट देखना है तो हमें वहाँ का सोशल सिचुएशन, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन और वहाँ कल्चर्स क्या हैं. हमारे यहाँ देख तो मल्टी कल्चर्स. एनी डिसीजन इज गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, बट इमीडिएटली यू सी देयर इज अपोज. पीपल यूज टू अपोज इट.
पीपल कम ऑन द रोड, उन्हें जैसे वो कुछ जानते नहीं हो। लोगों की भलाई के लिए सरकार स्टेप लेती है, डिसीजन लेती है, किसानों के हित में डिसीजन लेती है, लेकिन कुछ लोग किसानों को सड़क पे ला देते हैं। जस्ट some days before you have seen. So dear students, is it now clear? I hope this is clear to you that different democratic countries have different types of outcomes, not similar outcomes. प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में एक जैसा परिणाम सामने नहीं आ सकता, एक जैसी उसके रिजल्ट दृष्टिगोचर नहीं हो सकते. इट कैन नॉट बी सीन सेम टाइप ऑफ रिजल्ट बिकॉज देयर सोशल कंडीशन इज डिफरेंट, देयर कल्चर्स इज डिफरेंट. दिस डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स. लेट अस डिस्कस थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर हम डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं. हियर इज फर्स्ट, यू कैन सी, फर्स्ट इज हियर accountable government. First is accountable government. Democratic government is an accountable government. It means what? Democracy must provide right to choose the government and also the right to control them. Dear children, it is people who elect the democratic government, and it is people who used to keep full control on democratic government. Thus, this suggests that democracy must provide the most basic outcomes. What are most basic outcomes? Government accountable to the citizens, and also it should tend to fulfill the needs and expectation of the citizen. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जनता के एक्सपेक्टेशन को, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जनता की ज़रूरत को पूरी करनी होगी, और जनता के सुख दुख के लिए उसे अकाउंटेबल होना होगा, उसे जिम्मेदार होना होगा, उसे उसकी अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. प्रश्न उठता है क्यों लेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता के सुख दुख का जिम्मेदारी? वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल? बिकॉज it is people who have cast vote then the government has been formed. यह जनता है जिसने वोट दिया तब सरकार का जन्म हुआ, तब सरकार बनी है. तो जनता जब जन्मदाता है गवर्नमेंट की, तो अपने जन्मदाता का ख्याल रखना गवर्नमेंट का ड्यूटी है. सो गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल टू द हैप्पीनेस and sorrow of the people. So first parameter is that democratic government is accountable government. Democratic government is an accountable government. Dear children, democratic government जो होती है वह एक जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है. जनता के सुख दुख के लिए वह जिम्मेदार होती है. Second parameter is effective government. Democratic government is effective government. It is effective government. See the situation. Consider the case of non-democratic government. Suppose monarchy, suppose dictatorship. What happens in non-democratic system? The power is in the hands of single individual or group. पावर केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है, डिसीजन केवल एक व्यक्ति लेते हैं. तो जहां पूरे पावर्स, होल पावर टू टेक डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ वन मैन, इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन सच सिचुएशन, डिसीजन कैन बी क्विक एंड एफिशिएंट, बट द चांसेस ऑफ केयरिंग अबाउट पब्लिक ओपिनियन इज वेरी लेस. ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकार, राजा,
तानाशाह कोई भी डिसीजन जल्दी तो ले सकते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं होती कि जनता उस डिसीजन को एक्सेप्ट करती है। डर के मारे एक्सेप्ट कर सकती है। ड्यू टू फियर दे कैन एक्सेप्ट, और व्हेन द रूल ऑफ दैट रूलर और डिक्टेटर और दैट मोनार्क विल बी एंड अप, जब उस राजा का शासन समाप्त होता है, तानाशाह का शासन समाप्त होता है, तो जनता फिर या नई गवर्नमेंट जो आती है वो उस डिसीजन को पलट देती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता जनरली, बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी कंसिडर, जनता के विचारों को, पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू दिया जाता है। सो इन डेमोक्रेसी टाइम विल बी टेकन, दिस प्रोसेस may take time but it will be an effective decision। डेमोक्रेसी में समय लगेगा, लेकिन जब वो डिसीजन ले लिया जाएगा फाइनली, तो वह टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक देश को और जनता को लाभ देते हैं, फायदे पहुंचाते हैं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एंड द पीपल फॉर लॉन्गर टाइम। क्यों? Why? Because in democracy decisions are taken after discussion, after detailed discussion about its merits, about its demerits, or about its positive effect or about its negative effect. Suggestions are given and the main legislative institution, parliament, takes decision. In parliament, people participate in discussion. You will say, sir, people participate? Of course, indirectly people participate because their representative are there. MP, MLAs, if it is a state, MLAs, if it is country, Lok Sabha, Rajya Sabha, then member of parliament are there who have been elected by the people. वे अपने विचार वहाँ रखते हैं, वे अपनी बातों को वहाँ रखते हैं, तो हम लोगों ने चुनकर उन्हीं को तो वहाँ भेजा है। So indirectly we are participating in discussion. So dear students, in democracy decisions are taken after detailed discussion, after judging it, after making it sure that this law, this decision will be harmful or useful. After that final decision is taken. A democratic government is people's own government, तो harmful decision तो लिया ही नहीं जा सकता. Always it will be in favor of people. So you can say democratic government is effective government. Why effective government? Because in this decisions are taken not at once, not by one man, but decisions are taken after discussing its positive effect and negative effect. Let us move to next part. Here you can see procedure wise decision making. Government can take decision very fast. Government can take decision very fast, but many times such decisions it has been found. सरकार चाहे तो डेमोक्रेसी में बड़ी तेजी से डिसीजन ले सकती है, डिसीजन तेजी से लिया जा सकता है. गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, बट मेनी टाइम्स सच डिसीजंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल. जनता के द्वारा ऐसे डिसीजन एक्सेप्ट नहीं होते. इन अपोजिट टू, इन कंट्रास्ट टू दिस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक्स मोर टाइम. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा समय लेती है. फॉलोस इट्स प्रोसीजर, नियम, प्रोसेस को फॉलो करती है इन टेकिंग एनी डिसीजन, किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में. और जब हम
एक सिस्टम फॉलो करके कोई डिसीजन लेते हैं। व्हेन वी टेक डिसीजन आफ्टर थ्रू प्रोसीजर, आफ्टर सम फिक्स्ड प्रोसेस, then such decision will be effective, hence produce effective decision that is more acceptable to people. जनता उसको ज़्यादा पसंद करती है। Thus, even if time is consumed, but at the end effective decision can be produced. So democratic government produce effective government, effective decision is taken. That is also the good merit of democracy, and on this parameter also we can judge them. Another is free of corruption. कई बार लोगों का मानना होता है कि डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं होना चाहिए, वास्तविकता नहीं होना चाहिए। It is the objective of democracy that it will be corruption free, but we many times find that corruption is not indeed. Dear students, we are also responsible for this. Who gives corruption? Who gives bribes? It is people. Who takes bribe? It is people. दोनों ही दोषी हैं। फ्री ऑफ करप्शन, एम ऑफ डेमोक्रेसी होता है कि वहाँ करप्शन फ्री होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जनता को मिल चुका है। ये सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज वन वे टू कट करप्शन, टू हिट करप्शन, टू रिमूव करप्शन इविल्स। आज सूचना के अधिकार के डर के चलते बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी रिश्वत लेने से डरते हैं, गलत काम करने से डरते हैं, क्योंकि जनता कब कौन सूचना मांग देगी, फिर वे पकड़े जाएंगे, फिर उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। सो नाउ ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी must provide a government that is responsive to the needs and the demands of the people and should be free of corruption. कौन सा देश में क्या स्टेप उठाए गए हैं करप्शन को रोकथाम करने के लिए, करप्शन को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए? तो आप देखेंगे अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में स्टेप लिए जाते हैं। हमारे देश में भी स्टेप लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट है जो करप्शन को देखते हैं, करप्शन पे कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, और सूचना का अधिकार इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इवन इफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज स्लो, यस ये बात सही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो हो सकती है। कभी कभी तो हम उसे लेस एफिशिएंट भी कहते हैं कि पूरी तरह एफिशिएंट, सक्षम नहीं है। नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव, हमेशा लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं करते, मदद को आगे नहीं आते। जैसे आपने लॉकडाउन के समय ही देखा होगा, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे, उनके आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा था, उनकी व्यवस्था उतनी जल्दी नहीं हो पाई। पीपल मे अपसेट विथ करप्ट सिस्टम, ये सब बुराइयां हम देखते हैं और हम अपसेट हो जाते हैं, बट स्टिल इट इज पीपल्स गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी यह जनता की अपनी गवर्नमेंट होती है। क्या करप्शन मोनार्की में नहीं होता? क्या करप्शन डिक्टेटरशिप में नहीं होता? होता है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की इज नॉट द गारंटी दैट इट विल बी करप्शन फ्री। वहाँ तो और ज़्यादा करप्शन होता है और कोई आवाज़ तक नहीं उठाता, मुंह तक नहीं खोलता, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून नहीं बनते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वहाँ। द अल्टीमेट पावर बिलोंग्स टू पीपल। डेमोक्रेसी हमारी अपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें सरकार को बनाने वाला, चलाने वाला, गिराने वाला
सारे पावर जनता के हाथ में होती है। पीपल इज द क्रिएटर ऑफ गवर्नमेंट, रनर ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गिव्स अस चांसेस टू करेक्ट आवर मिस्टेक। अगर हमने किसी नेता को चुनकर, किसी पार्टी को चुनकर, किसी सरकार को चुनकर गलती की है, तो अगले इलेक्शन में उस पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे, उस गवर्नमेंट को हम वोट नहीं करेंगे और हम अपना मिस्टेक सुधार सकते हैं। वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑन दिस पैरामीटर, इकोनॉमिक ग्रोथ में, रेट में, ग्रोथ रेट में, डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी स्लो हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स, आई एम टेलिंग यू, कीप इट इन माइंड। इन मोनार्की, इन डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में बी फास्टर, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन लेने में समय नहीं लगता। गवर्नमेंट टेक क्विक डिसीजन, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई विरोध नहीं करता, कोई सड़क पे नहीं आते। यहाँ तो सरकारी ज़मीन पे लोग घर बांधे हुए रहते हैं, दुकान खोले हुए रहते हैं, सरकारी ज़मीन कब्जा करके रहते हैं। और व्हेन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इवैक्यूएट इट, जब उसको खाली कराने जाते हैं तो वे प्रोटेस्ट करते हैं और दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग that the democracy should provide good government, then we also expect that the government should bring economic growth and development. अगर अच्छी सरकार होगी तभी अच्छी सरकार होगी जब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बट in last 50 years it is observed that dictatorship have slightly higher rate of economic growth। ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में, तानाशाही सरकार में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेवलपमेंट का, विकास की जो गति होती है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट होती है वो तेज होती है, फास्टर होती है। हमने बताया भी क्यों। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब ये मत समझना कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छा होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिसीजन धीरे समय लगता है, काम थोड़े स्लो होते हैं लेकिन पक्के होते हैं और ज़्यादा पीछा नहीं होता। इफ़ यू विल जज the economic growth rate is not much behind। डेमोक्रेसी में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत पीछे नहीं होता मोनार्की से और डिक्टेटरशिप पे। इट इज़ ऑल्सो नॉट मच बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ इट इज समटाइम दिस क्वेश्चन इज asked separately also, so you prepare it as a separate question also। economic growth depends on factors। on which factors economic growth depend। कभी कभी तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि अमेरिका कितना डेवलप कर गया, ब्रिटेन कितना डेवलप कर गया, जापान कितना डेवलप कर गया, हमारा देश क्यों नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर है पॉपुलेशन साइज। आज आपके देश में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन वाला देश अगर आप देखो तो हमसे ज़्यादा स्पीड में आगे नहीं गए हैं। केवल चाइना को अगर छोड़ दो तो चाइना में फिर से वही डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट रूल है, तो थोड़ा सा वहाँ डिसीजन फास्टर होता है, लोगों के विचारों को वैल्यू उतनी नहीं दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। इफ़ द पॉपुलेशन साइज इज bigger, larger, the development process will be slow। What is the world economic situation? पूरे दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी डेवलपमेंटल ग्रोथ डिपेंड करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। सपोज अभी कोरोना काल है, कहीं भी किसी भी देश से किसी दूसरे देश को उतनी हेल्प नहीं मिल रही,
Suppose there is war period, it also creates problem. So what is the economic situation of the world? On that also economic growth depends. Cooperation from other countries, how much cooperation one country gets from other countries? एक देश दूसरे देश से, एक देश को दूसरे देश से कितनी कॉपरेशन मिलती है? टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ गेटिंग मच कॉपरेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. उसी जगह पाकिस्तान को आप देखो, बहुत सारे देशों से उन्हें कॉपरेशन नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? ड्यू टू देयर सपोर्ट टू टेररिज्म. आतंकवादी को वो समर्थन करते हैं, इसलिए बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे डू नॉट सपोर्ट देम ओपनली. इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का डेवलपमेंट ग्रोथ इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की सरकार ने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी है. सपोज टेक एग्जाम्पल इन इंडिया, इफ देयर विल बी ओनली a stress on agriculture, then what will happen? In those areas where agricultural land is not available in large quantity or there is no fertile soil, there will be less development. So it depends on economic priorities. Which field has been given first priority, second priority for the development? It may be agriculture, maybe industry, maybe tourism, and many more. So here you have seen economic growth depends on population size, world economic situation, cooperation from other countries, economic priorities of the country. Since the difference of economic growth is minimum, आप ऐसा मत सोचो कि डिक्टेटरशिप में बहुत ज़्यादा फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है. नहीं, थोड़ा सा डेमोक्रेसी से फास्ट होता है. Since the difference of economic growth is minimum, so we should accept democratic government as it has other positive outcomes. ठीक है, एक जगह हम डिक्टेटरशिप से पीछे हो जाते हैं डेवलपमेंटल ग्रोथ रेट में, लेकिन क्या डिक्टेटरशिप में फ्रीडम मिलता है? पीपल एंजॉय फ्रीडम? नो. पीपल हैव एनी राइट? नो. पीपल हैव एनी पावर? नो. पीपल कैन प्रोटेस्ट? No. People can do hartal? No. People can come on the road? No. People can cast vote? No. People can change government? No. तो इतने सारे अच्छी चीज़ों को भी तो ध्यान में आपको रखना होगा. In economic growth rate, okay, dictatorship is little better, but on other parameters, as I have told you, freedoms, people's power, rights, etc., democracy is more better than any other form of government. So on this parameter we can check, we can evaluate democracy. Reduction of inequality and poverty. Here also I will tell you that the rate of reduction of inequality and poverty is slow in democracy. But you know, in democracy, prime aim of government is to bring equality. Main aim government की होती है equality लाना. The prime objective of democracy is equality. But in current situation, we find that economic inequalities are growing. आजकल हम देख रहे हैं कि rich are becoming richer, poor are becoming poorer. यह चिंता की बात है. As a result, huge wealth belongs to very few rich people. However, a large population of poor cannot afford even their basic needs. एक तरफ जहाँ देश की बहुत बड़ी हिस्से में लोगों को भोजन नसीब नहीं होता, कपड़े नसीब नहीं होते, घर नहीं मिलते, शिक्षा नहीं मिलता, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती, दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि कहाँ खर्च करे वो नहीं समझ में आती. Students, here also in democratic system, more taxes are taken from rich people. रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं और लो इनकम लोगों को या तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है और लेस टैक्स आर टेकन. So here also I have seen that yes, it is true that
process may be slow, rate of reduction of inequality may be slow, but in democracy whatever decision is taken, it is durable, it is it lasts for longer time, it lasts for longer time. Here you can see, being a democratic government, it can be expected that government should address the problem of poverty and think in direction of reducing the poverty. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान रहता है कि वे जनता की गरीबी को दूर करें, आर्थिक असमानता को दूर करें, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी जैसे समस्या को समाप्त करें और हमेशा गरीबी को कम करने की दिशा में कदम उठाएं. दे शुड टेक ए स्टेप टू एंड द पॉवर्टी. सो हियर आई हैव डिस्कस्ड indirectly 3 topics. 1. Different ways to evaluate outcomes of democracy. 2nd, what factors, on which factors economic growth of the country depends. 3rd, what are common things in all the democratic countries, but why result is different. And next one is that economic inequality and reduction of poverty. On this topic I have discussed. I hope many things, many doubts will be clear after watching this video. If still you have any problem, you will write in comment box. I will address, I will try to satisfy your queries. Thank you. Take care. If you have not subscribed the channel, please subscribe it, like it, and you must share your comment. ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी टॉपिक्स पे अगला वीडियो आप चाहते हैं, क्या कौन से टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं हुआ. You must write that which point you have not understand, and these things, these points which I have brought for you, you can use them as a note to write question answers in your copy or in the examination. Thank you. Take care. Bye bye.